Irfan Pathan. We hear him every day, and now that voice has become part of our cricket watching, consuming, consumption, absorption. His tweets, he still plays every single day. Difficult to pin him down. Finally managed 20-25 minutes with Irfan. But यार वर्ल्ड कप आ चुका है. आप हर मैच में कमेंट्री भी कर रहे हो, देख रहे हो. You know, while I don't want to sort of jinx it, yeah, knockout matches, this team does look the part. This team does look the part. अगर ये टीम अच्छा नहीं करेगी तो वो सरप्राइज हो जाए. कोई दो राय नहीं। और सबसे पहले तो बोरिया बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने हमें दोबारा आपके मंच पे बुलाया है। और ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट है, आपके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप किसी को भी पकड़ सकते हो। वैसा नहीं है। यहाँ पे गोवा में हूँ, मैचेस खेल रहा हूँ, लेकिन यस हियर वी आर एंड आई रियली थिंक यार दिस टीम इज सॉलिड टीम। दिस इज द टीम वेयर every selector's dream, every coach's dream, every captain's dream. What you want? You want some firepower at the top. You want some outstanding bowler who can handle the pressure in terms of Bumrah. Top of the order Abhishek Sharma. You have outstanding spinner. एक के बाद एक spinner. अभी बिश्नोई comeback करता है, वो perform करता है. So I think it's a dream, run and dream time for Indian cricket, and I think we should just not stop winning trophies. And it's high time, and obviously a lot to do with the kind of environment has been created as well by the team management as well. A lot of people do criticize management, but you got to praise here as well. How they play, especially with this young team, how they created the whole atmosphere of being free. It's not easy, because if you play fearless cricket and get out, you might think that I might lose my spot, but it doesn't look like, especially in T20 games, it doesn't look that way. So it's absolutely, you are right that हमें मतलब दिस इज आवर वर्ल्ड कप टू लूज, उस तरीके की सोच लग रही है। बिकॉज दूसरी टीम पे अगर आप नजर भी डालते हैं ना, दे हैव लॉट ऑफ इश्यूज यार, दे हैव लॉट ऑफ इश्यूज। आई वाज जस्ट लुकिंग एट द स्क्वाड ऑफ ऑस्ट्रेलियन टीम, some of the main players are injured, they're recovering, and coming into the World Cup recovering phase and thinking कि यार हम लोग आते ही ना वर्ल्ड कप में उस तरीके का प्रदर्शन करेंगे, आई थिंक बहुत मुश्किल होगा। नेथन एलिस की इंजरी आई थिंक बहुत बड़ा फैक्टर है ऑस्ट्रेलिया के लिए। बट इफ यू लुक एट इंडियन टीम, इंजरीज या इन फॉर्म ना होने के बावजूद दूसरे लड़के आते हैं, परफॉर्म करते हैं, और जो ग्रुप बनाया है इट्स फैंटास्टिक। आपने पहले ही जो मैनेजमेंट का बात किया इरफान, उसी पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं. आई मीन गौतम हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज रेड बॉल, ओडीआईज, 50 ओवर्स एटसेट्रा. बट इस फॉर्मेट में गौतम गंभीर सर्टेनली लुक्स एब्सोल्युटली इन कंट्रोल. वेदर आप केकेआर देख लो, ये फॉर्मेट देख लो, फियरलेसनेस के बाद आपने किया, आई थिंक दिस इज गौतम्स फॉर्मेट इन दैट सेंस, एंड क्रेडिट वेयर ड्यू. खाली क्रिटिसिज्म होगा या क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, ये सही नहीं है. So a little bit on Gautam Gambhir as coach for the T20 format. Look, एक तो सबसे पहले बिल्कुल सही कि गौतम गंभीर का ये फोटे T20 गेम, हमने देखा है उसकी कप्तानी आउटस्टैंडिंग है. ही ऑलवेज थिंकिंग अहेड ऑफ द गेम एज वेल. आई एक्चुअली वर्क विद हिम अ लॉट इन कमेंट्री आल्सो. जब उससे बात भी करो ना, तो वो हमेशा सोचता है कि यार आगे क्या होने वाला है. सो दैट इज अ बिगेस्ट प्लस ऑफ गौतम गंभीर. Because in T20 cricket, the game goes really fast. And when the game is going really fast, you need the guys who are the leaders of the team. Be there it's a captain, be there is the senior player on the field, or be there is the coach. What are they thinking? Are they thinking ahead of the game or not? And I feel Gautam Gambhir in T20 cricket always ahead of the game. And that's why he's been very, very successful. Be there it's KKR as a captain, as a coach, or with this Indian team as well. Even in one-day cricket, look, we should not forget the kind of success he had with the Champions Trophy as well, in white ball cricket, especially in T20 cricket as well. And one more thing. Yes, criticism is going to be there. Everyone going to criticize when you're not going to perform. Even Gautam knows that as well. Even I have been, the guy who is, when the Indian team hasn't done well in Test cricket, in one-day cricket, we have criticized, and which is fair. And he understands that as well. When you speak to him, he totally understands. He totally respect that as well. But we have to understand as well. Test cricket, definitely, we are going through a phase where यार बड़े खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट लिया है. बड़े खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट लिया है. हमारे पास जो बुमराह रेगुलर क्रिकेट खेलते थे, वो रेगुलर क्रिकेट अभी नहीं खेलते. वैसे मैनेज करके आपको चलाना है. अश्विन कोई छोटा मोटा प्लेयर तो नहीं है ना.
भाई 500 विकेट लेने वाला बॉलर इंटरनेशनल क्रिकेट में वो रिटायर होता है तो आपको उसका रिप्लेसमेंट चाहिए ना भाई। 400-500 विकेट कम नहीं होती है। फिर आपके पास जडेजा जो एक पीक पे एक टाइम पे खेलते थे, वो अभी बैटिंग में बहुत जबरदस्त कर रहे हैं, लेकिन आपको और भी खिलाड़ी चाहिए ना। तो उस लिहाज से अगर आपके 3-4 इंपॉर्टेंट पोजीशन जाती हैं तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता जरूर है। सो आई थिंक वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट फेज ऑल्सो। देर इज अ फेज which require a lot of time and better planning, and I'm hearing the right noise from Shubman Gill and from the team management कि अब आपको कुछ बिल्कुल। कुछ दिन पहले आपको वो करना पड़ेगा भाई, कैंप करना पड़ेगा, मैचेस खेलनी पड़ेगी। दैट्स अ राइट वे टू गो एज वेल। बट talking about Gautam Gambhir, T20 cricket, I don't think there are many better minds as far as, getting the strategy right. Gautam Gambhir is up there. इसी इसी पे अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो करंट सीरीज है इरफान, पहला मैच में अभिषेक शर्मा बैटेड ब्यूटीफुली, एंड Hmm. अभिषेक पे भी थोड़ा सा सवाल मैं पूछूंगा, बट Hmm. सेकंड मैच में अगर आप देखें, फर्स्ट बॉल डक आउट, अगेन थर्ड मैच कोई Hmm. चेंज इन फॉर्मूला नहीं, सेम स्ट्रैटेजी पे वो जा रहे हैं। इसका मतलब क्या, टीम मैनेजमेंट ने उनको वो कॉन्फिडेंस दिया हुआ है कि यार फेल Yeah. करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, वी आर Yeah. बैकिंग यू, गो डिलीवर। That I think is very clear with people like Abhishek Sharma, that Gautam Gambhir and his team, the rest of the support staff also, they have been able to do that with these young players. And the second part of the question is Abhishek Sharma. I mean, Irfan, you've played cricket, you still play cricket. How is it that this guy, every ball he's hitting, every single ball, हम लोग पहले जब क्रिकेट देखते थे, आप एक छक्का मारा आपने, फिर एक सिंगल लिया, दैट वाज लाइक द पैटर्न, एंड वी वुड से देखो सेंसिबल है। इस Yeah. आदमी तो हर बॉल में चला रहा है, बट देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस। सो Yeah. गौतम एंड देन अभिषेक शर्मा। Yeah. So first thing first, when you talk about Gotham, so as a coach, so I've been mentor as well of the players. I've been, coaching as well some of the youngsters around in my academies as well. So suppose if I give them the base and the backing, कि यार ठीक है, आप पहाड़ पे चले जाओ, आप पहाड़ से जंप करो नीचे, ठीक है, यू जंप, मैं नीचे खड़ा हूंगा आपको पकड़ने के लिए। मैं अगर वो भरोसा दिलाऊंगा किसी भी प्लेयर को, वो दे विल नॉट ओनली जंप, दे विल फ्लाई, दे विल एब्सोल्युटली फ्लाई इन अ ट्रस्ट दैट इरफान भाई नीचे खड़े वो पकड़ लेंगे। I think that sort of trust has been given especially to guys like Abhishek Sharma and even for that matter शुमन को भी जब लेके आए थे, उनको भी काफी अच्छा लंबा रन दिया कि भाई चलो आप करो, आप उस तरह से करने की कोशिश करो, शायद वो आपकी गेम नहीं लेकिन लेट्स ट्राई। संजू को भी ऊपर नीचे हुआ जरूर, लेकिन यार वो वही है। इवन द अदर प्लेयर्स, बुमराह, मैं ये पर्सनली चाहता कि यार उनको सारी मैचेस खेलनी चाहिए, लेकिन उनको पता है कि यार सारी मैच खिलाएंगे तो शायद बुमराह को हमको वर्ल्ड कप में जरूरी है, और वर्ल्ड कप में आपको पहली 4 मैचेस में से 3 मैचेस ऐसी मिलेंगी जो इसमें यूएसए भी है, कमजोर टीम है, उनके सामने आपको रिदम में आने का मौका मिलेगा। तो दे थिंकिंग स्लाइटली अहेड देन व्हाट वी आर थिंकिंग फ्रॉम द आउटसाइड। तो अगर आपको वो बैकिंग नहीं है ना फ्रॉम मैनेजमेंट, तो आपके लिए फेयरलेस क्रिकेट खेलना बड़ा मुश्किल है। इसी वजह से अभिषेक शर्मा का जो अप्रोच की आपने बात की कि वो लड़का पहले मैच में रन बनाता है, फिर आउट हो जाता है, फिर तीसरे मैच में आके पहले बॉल पे स्टंप आउट करके छक्का मारता है, वो तभी होगा जब आपका जहन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। और जहन में बहुत बड़ी भूमिका, बहुत बड़ा रोल कोचेस अदा करते हैं, मैनेजमेंट अदा करते हैं, जिसमें खुद के कोचेस भी होते हैं, खुद के मेंटोर भी होते हैं, और टीम का भी होता है। तो इसमें तो साफ साफ नजर आता है जिस तरह से ये T20 क्रिकेट खेल रही है, ये जो मैनेजमेंट है जिसमें गौतम गंभीर का बहुत बड़ा हाथ है, उसमें ये बोला गया है कि आप इसी तरह से क्रिकेट खेलो। और आई रियली थिंक दैट वर्क्स बिकॉज हम सारे क्रिकेटर ना एक इंसान है, एंड वी हैव आवर ब्रेन, एंड कितने भी स्किलफुल खिलाड़ी हो जाओ, अगर आप जहनी तौर पे पुख्ता हो और सिक्योर फील कर रहे हो, तो फिर आप बहुत जबरदस्त अप्रोच के साथ आगे बढ़ सकते हो, जो हमको इनके साथ देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन जरूर है जो मैं अभिषेक शर्मा का जो आपका सवाल है उसके बाद में बताऊंगा। दूसरा, अभिषेक शर्मा, आपने ये बात कही कि अभिषेक शर्मा जैसा जो खिलाड़ी है वो डरता नहीं है, वो इतने छक्के लगाता है, और ये कैसे कर पाता है? यस, योर अप्रोच हैज टू बी देयर, वो माइंडसेट कि भाई आपको जाके तड़ी देना आउट होने के बाद भी, वो है उसका अप्रोच, वो दिखता है। दूसरा, जो टेक्निकल चीजें उसकी कमाल की है, उसका हेड पोजीशन स्टेप आउट होने के बाद भी फास्ट बॉलर को एकदम स्टिल रहता है। वो
ठीक करना, उसको उस लेवल पे लेके आना हर किसी के बस की बात नहीं है, बिकॉज उसका जो बैट पकड़ने का तरीका है वो भी हैंडल में एकदम नीचे है। मेरे पास एक्चुअली बैट पड़ा है, लेकिन मैं जाऊंगा तो फिर टाइम आपका वो नहीं, स्क्रीन खाली हो आप जाएगी। दिखा दो, लेकिन मास्टर क्लास हो जाएगा, आप लेके आओ। नहीं, लेकिन सो बेसिकली कहने का मतलब है, एक तो हैंडल है, सो हैंडल यहां से लेके, अगर इतना हैंडल है तो एकदम नीचे से पकड़ता है, तो जब वो हैंडल के एकदम आखिरी से पकड़ेगा तो होता क्या है, उसमें आपको बड़ा लिवरेज मिल जाता है। लेकिन एक चीज है, इसमें आपका कंट्रोल जाता है। यूसुफ पठान आपको याद होगा, केकेआर से खेले हमारे बड़े भाई, उनका भी वही होता था कि बहुत ऊपर से पकड़ते थे तो पावर बहुत मिलता था, रीच बहुत बड़ा होता था, बहुत दूर छक्के जाते थे। अभिषेक शर्मा का भी वो जो हैंडल में एकदम ऊपर पकड़ते ना, उस वजह से उनका लेवरेज बहुत बड़ा है। लेकिन कभी भी किसी भी कोच को आप पूछेंगे कि हैंडल को कहां से पकड़ना है, अगर आप बीच में से पकड़ोगे तो बेटर कंट्रोल आएगा, एकदम नीचे से पकड़ोगे तो और ज्यादा कंट्रोल आएगा, क्योंकि जो बैट का हैंडल से ज्यादा बड़ा हिस्सा होता है बल्ले का, जो वुड वाला हिस्सा होता है, उसके पास जितना जाओगे उतना ज्यादा ज्यादा कंट्रोल कर पाओगे, मनूवर कर पाओगे। लेकिन आप जितना जितना उससे दूर जाओगे और जिस तरह से अभिषेक बैट पकड़ता है वहां से पकड़ोगे, तो आपका कंट्रोल कम होगा। लेकिन इस बल्लेबाज का कंट्रोल भी कम नहीं होता, पावर भी हमेशा जहां से बैट पकड़ता है मिलता रहता है। तो कहां से लेके आता है, एक उसका बैट फ्लो बहुत अच्छा है, और दूसरा आप उसके शॉट देखो, ऑफ साइड पे, लेग साइड पे, उसका हेड पोजीशन बहुत कमाल का है। और हेड पोजीशन सिर्फ हेड पे काम करने से नहीं होता है, आपके हाथ पे काम करने से होता है, आपके बेस पे काम करने से होता है। एंड आई रियली थिंक ही हैज वर्क रियली हार्ड, एंड दैट्स व्हाई ही इज बीन एबल टू कंसिस्टेंटली हिट द बॉल लॉन्ग। और दूसरा एक क्वेश्चन की मैंने बात की थी, सॉरी, ये जो अप्रोच है, इट इज वेरी गुड, बट आई रियली थिंक in this team, guys like Tilak Verma is very very important, because जब प्रेशर आएगा ना, जब बॉल थोड़ा सा ग्रिप करेगा, जब बॉल में आपके पास कंडीशन ऐसी आ जाएगी, देखिए इंडियन टीम, अगर कंडीशन दोनों टीम के लिए बराबर है ना, इंडियन टीम बहुत आगे, हर टीम से आगे। लेकिन अगर कंडीशन थोड़ी बदलती है, इंडियन टीम को थोड़ी मुश्किल कंडीशन मिली और सामने वाली टीम को कंपैरेटिवली आसान हो जाता है ना 40 ओवर में। कई बार ड्यू, शबनम की बात करता हूं मैं, जो ड्यू आता है वो अगर बॉलिंग करने में आ गया तो फिर मुश्किल हो सकती है। बैटिंग में हमने पहले बॉलिंग कर ली और बाद में बैटिंग करने गए और ड्यू नहीं आया और ड्राई कंडीशन होती गई, तो कंडीशन थोड़ी चेंज हो गई। तो उसमें जब कंडीशन चेंज होगी, थोड़ा बॉल ग्रिप होगा, तो उसमें तिलक वर्मा जैसे बैट्समैन बहुत क्रूशियल होंगे, क्योंकि वो परसेंटेज क्रिकेट खेलते हैं। तो ये टीम में सारे एग्रेसिव खेलते हैं, विच इज फैंटास्टिक। बट फिर तिलक वर्मा जैसा परसेंटेज क्रिकेट खेलने वाला, जिसने फाइनल में पाकिस्तान के सामने कमाल की बैटिंग की थी परसेंटेज क्रिकेट खेल के, वैसा प्लेयर आपको चाहिए, तो ही बिकम्स वेरी क्रूशियल। And with the return of Hardik, the balance is now back, you reckon? Because Hardik, Aksar, even Shivam, they are all playing the part, and Hardik, with his all round ability, obviously doing the job. So India does have that all round ability in the middle also, which kind of helps Gautam Gambhir, the coach. Absolutely. How many teams has three all-rounders? You know, if you look at it, three quality all-rounders, and on that, two are the quality all-rounders who can bat at any position. Hardik, he can bat four if you want him to bat up the order. Akshar always played the floater, 4, 5, 6, wherever wherever you want he can play. Shivam Dube is a guy who can bash the spin so hard. Plus, we've seen in the final, Asia Cup final against Pakistan, that he can bowl the new ball as well when when the team required after the injury of Hardik Pandya. So, and Hardik can take up the new ball, as well as Akshar can bowl in the power play and in the middle over. So not many team has the liberty of three quality all-rounders, which makes things a lot easier for captain and the coach. What does, I know no host country has won it. I know knockout matches. I know, no country has won back to back. Are there any areas of concern, in my last question, that India needs to keep in mind when they go into the World Cup? Because every box seems to have been ticked. So any Yeah. word there from Irfan Pathan, a word of cautious optimism? It will not go well with the approach what Team India has, gone in for so far, because they play very aggressive cricket, and it's scaring a lot of other teams. But my only thing is what we do in knockout games, what Bumrah does in those crucial situations and the position. How does Abhishek Sharma go in the knockout matches? If we lose early wicket, who is the guy who can absorb the pressure
As I said about Tilak Verma as well, he can be the crucial guy. So those sort of things come into play. See, World Cups are not easy to defend. World Cups are not easy to win because things changes, condition changes, team changes, the mindset changes. Every day is a new day. So yes, we ride high on confidence. We have won 43 out of 48 matches in since the last T20 World Cup. It is unbelievable number. लेकिन हमारी बॉलिंग कैसी होती है स्पेशली डिफिकल्ट सिचुएशंस में। अब ये भी है ना, प्लेइंग कॉम्बिनेशन में आखिर में आपने जिस तरह से यॉर्कर डाले थे बुमराह के साथ, हार्दिक ने बॉल डाला था, अर्शदीप ने बॉल डाला था, क्या हम वो रिपीट कर सकते हैं दोबारा अंडर प्रेशर? बात आके उसी पे अटक जाएगी। और अगर हम जो अप्रोच के साथ खेलते हैं उसमें 2 विकेट फटफट गिर जाती है, कंडीशन थोड़ी सी मुश्किल होती है, वहां पे हमारा अप्रोच क्या होता है, क्या टीम संभालती है, ये सबसे बड़ी देखने वाली और एक्साइटिंग वाली बात रहेगी, स्पेशली नॉकआउट में। Thank you very, very much and look forward to having you with me. Thank No you very problem. No problem. Take care. Thank you very much. Bye. 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 Bye.